how are you doing? So, today I have a very special guest with me, and his name is Akash Deep Arora. He's been featured in Yuri as Akash, who made the Garud, who made that spy uh, bird. So, yes, today, and we'll be talking about his journey and how he made it into the film industry, how what is exactly his journey, how he's been dealing with the quarantine period and everything regarding. I'm really thrilled to get him on board as I would really like to discuss different aspects of acting because he's a theater artist also. He's been doing theater since a very long time and he has a very, very, very amazing experience of theater. So, yes, I'm waiting for him to join us here and let's see. I'm just waiting that he would join us and I'll take him with me here on Insta Live. I'm really excited. You all tell me, and yes, if you all have any questions here, please do put in the messages and we will answer them in the last. So here he is, and yes, he'll be joining us in a while. Yes, he is connecting. Meanwhile, if you guys have any questions, please put down in Hello. the messages. Hi Akash. Hello. Hi, Poonam. Sorry, I can't see you. It's still processing. Okay. Still can't Is see it you. fine? No, Hello. I can't see you. Hello. I can't see you. I can hear you, but I can't see you. Okay, I'll join again. Okay, so some problem happened and he's going to join us again. And yes, I'm really excited, yeah, listening to the experience of the people who have worked in industry and how they have made it, how they get their projects, working with such big names, how do they feel around them. It's one another level of experience you get to hear. So yes, I'm again waiting that he would join us. Hi. See? Super. Hi, Akash. Hello. Hi. Finally, I can see you. How are you doing? I'm good. How are you? Great, great. So, how is quarantine? Finally, Uh, Mumbai is opening up a little bit. yeah, but still scary. But I have no idea when I'll be going back. Right now, I'm in my hometown, Kanpur, and Oh, in okay, Kanpur right okay. now it's decent for me because I'm staying at home and spending Okay. with my family. So I think that's precious. Oh, great. That's nice. So, tell me, tell me one thing. How did you got into this whole acting career? Whole acting career, I think there were so many hurdles I had to cross while when I had to jump on acting. So I researched so many things. I got to know about so many things. So before anything related to filmmaking or entertainment, I was into sport, and uh, and that was in school. And Hmm. 8th क्लास में मेरे बहुत ही गंदे मार्क्स आए थे और मुझे Okay. घर आने पड़े थे मतलब मेरी ऑलमोस्ट लास्ट ही रैंक थी क्लास में आई वाज पास बट Hmm. आई वाज लास्ट इन क्लास सो आई हैड टू हाइड फ्रॉम माय मॉम कि मैं मतलब पास तो हो गया हूँ वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी कोई फोर्स नहीं था कोई प्रेशर नहीं था फैमिली से पढ़ाई का Hmm. बट स्टिल आई वाज स्केयर्ड कि उनको बताऊंगा कैसे कि इतने गंदे मार्क्स आए हैं भले ही पास Sorry. तो देयर वाज अ मोमेंट कि मैंने सोचा आई थिंक आई हैड टू लीव क्रिकेट एंड Okay. बिकॉज नाइन्थ में जब भी कोई स्टूडेंट होता है और उसके अच्छे मार्क्स नहीं आते और मेरे ख्याल से स्कूल की भी ये एक उनका भी एक तरीका होता है कि गंदे मार्क्स देने का ताकि बच्चे की स्टीम लो हो जाए और वो टेंथ में बहुत मेहनत करे तो Okay. इसी वजह से मैंने आई थिंक छोड़ दिया स्पोर्ट्स एंड ऑल बिकॉज नेक्स्ट ईयर टेंथ बोर्ड था और वहीं पे मैंने सोचा कि इट्स बेटर कि पढ़ाई में ध्यान दे लो पता चला
स्पोर्ट्स में भी नहीं रहे और पढ़ाई में भी Hmm. नहीं रहे, एटलीस्ट पास हो जाओ। तो वहां से जब आई लेफ्ट क्रिकेट एंड बट आई वाज प्लेइंग बट नॉट दैट मच जितना मैं पहले खेलता था। फिर उसके बाद आई वाज एक्सप्लोरिंग सो मेनी थिंग्स बिकॉज कुछ ना कुछ करना ही था। मतलब अगर तुम पढ़ाई नहीं कर, Okay. अगर तुमने स्पोर्ट्स छोड़ दिया तो यू वर डूइंग समथिंग एल्स। सो आई गॉट इनटू डांस, ऐसे ही स्टार्ट करा वहाँ पे स्कूल में ही। और 11th में आई परफॉर्म्ड इन माय स्कूल। और पहली बार ऐसा था कि किसी मतलब स्टेज में जाके परफॉर्म कर रहे हो आप। और Hmm. काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, पीपल अप्रिशिएटेड ऑल्सो, जितने भी स्टूडेंट्स थे टीचर्स थे। तो 12th में टीचर्स ने मुझे ही कोरियोग्राफर बना दिया स्कूल का। तो Okay. मैंने कहा चलो अच्छा ग्रेट, विदाउट एनी एक्सपीरियंस आई वाज द कोरियोग्राफर ऑफ माय स्कूल। एंड आफ्टर दैट आई वाज एक्सप्लोरिंग सो मेनी थिंग्स। सो व्हेन आई लेफ्ट माय स्कूल, तो नेक्स्ट डे लाइक मेरा स्कूल का लास्ट एग्जाम था, I came to Bombay for 2 months. I wanted to learn DJing and Hmm. मैं मुंबई लैंड किया 2 महीने के लिए। I learned live playing DJing and उसके बाद घर आया। Mom said that you can buy your own setup DJ का and you can do whatever you want यहाँ पे कानपुर में। And I was like कि if I'll be playing in Kanpur, if I'll be working in Kanpur and that too as a DJ, so I can't go beyond. I'll be stuck in those weddings जहाँ पे पंजाबी गाना लगाते रहेंगे हम। मैंने सोचा कि Okay. to do something, at least do something which is good for you. Maybe go out and do your graduation related to something which can actually which through which you can do and जिसमें तुम्हारा interest हो। तो then I researched about mass communication and I was like okay, I can do Delhi, तो आई कैन डू मास कम्युनिकेशन। तो मैंने एमिटी में एडमिशन लिया नोएडा में। और वहाँ पे मैंने मास कम्युनिकेशन किया एंड साइड बाय साइड आई वाज ट्राइंग इनटू डीजेइंग आल्सो सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्क्स। और वहीं पे कॉलेज Okay. में व्हेन आई टुक एडमिशन तो काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करी, फोटोग्राफी एक्सप्लोर करी, फिल्म मेकिंग एक्सप्लोर करी, डायरेक्शन एक्सप्लोर किया, राइटिंग एक्सप्लोर करी। और उसी Oh, बीच में जो छोटे nice. छोटे रोल्स होते थे एक्टिंग के वो एक्सप्लोर किए। तो तो वहीं से आई थिंक दैट वाज That फर्स्ट that was your step towards initial acting, and I was point. like, yeah, initial point when I got to know, okay, this is something which I want to do, and I want to be surrounded with films, with the entertainment business, and I was like, this is it. But I was still not clear कि मैं acting में घुसूंगा। And Okay. मैं I think after college I did this film called Kitli, जिसमें मैंने behind the scenes shoot किया था, and I got to Okay. So know that was how your first project, right? first project into film Huh. in film. Yeah, Yes. this Hmm. was 2013. Okay. 2013 and मेरे एग्जाम्स खत्म ही हुआ था, उसमें भी ऐसे ही था। एग्जाम खत्म जिस दिन एग्जाम था कॉलेज का, उस दिन मेरा फर्स्ट डे शूट था। Okay. और मैं सेट पे था, पर मतलब एग्जाम्स खत्म करके मैं सीधा डायरेक्टली सेट पे गया था एक्टिवा से अपनी। और वहाँ पे आई गॉट टू नो कि फिल्म्स कैसे बनती है एंड जिस हिसाब से हम लोग कॉलेज में शॉर्ट फिल्म्स बनाते थे उस हिसाब से तो बिल्कुल नहीं बनती है और काफी एफर्ट्स Uh, डल। भले ही दैट वाज एन इंडी फिल्म एंड इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय वाईआरएफ बट स्टिल मुझे पता चला कि एक भले ही आप उसको एक स्लम जैसा एरिया दिखा रहे हो या कोई गरीब जैसा एरिया दिखा रहे हो, स्टिल उसके पीछे जो सेटअप होता है वो बहुत हैवी होता है, बहुत ज्यादा heavy होता होता है। है. कितने लोगों के दिमाग लगे होते हैं और वो डायरेक्टर कितने टाइम से उस प्रोसेस में लगा हुआ होता है। एंड वर्किंग with Kanu Bell, I realized that filmmaking is something you have to you can't just get into it, you have to first understand। Obviously हम लोग फिल्म मेकिंग हमने कॉलेज में पढ़ा था और जिस लेवल का पढ़ा था उस लेवल पे तो आई वॉज कंपेयरिंग माई सेल्फ कि मैं कुछ भी नहीं। So then Okay. I think कि it's better to get out of Delhi because you used to get opportunity in Delhi. Obviously, I was getting good work behind the Hmm. camera. I was earning enough as a photographer or as a cinematographer. Hmm. So, but still, you always want to learn more, and you want to get better, and you don't want to spend so much time just to, you know, get into it. You want to spend more time, and you want to get better. And you don't want to spend so much time just to, you know, get into it. So then I think कि it's better to get out of Delhi because you used to get opportunity in Delhi. Obviously, I was getting good work behind the camera. I was earning enough as a photographer or as a cinematographer. So, but still, you always want to learn more and you want to get better, and you don't want to spend so much time just to
spend in Delhi and learn slowly. And Mumbai में you know that people like mostly जो भी जिनको भी better artists जितने भी होते हैं they prefer to go to Hmm. Mumbai. They learn more Mumbai, over there. correct. So I thought कि it's better now after spending 1 year in Delhi. I was like कि 2014 में I came to Mumbai and वहाँ पे I did this film called Detective Byomkesh Bakshi as a still Okay. photographer. And वहाँ पे I saw नीरज कावी sir performing and उनका रिहर्सल करते वक्त वो रियाज करते थे उस वक्त और वहाँ पे मुझे लगता था कि दिस इज अ लाइक आई फेल्ट लाइक कोई चुंबक है जो मुझे खींच रहा है और देन आई रियलाइज कि आई शुड नो अबाउट हिम एंड देन आई गॉट टू नो अबाउट हिम एंड उनका थिएटर बैकग्राउंड So काफी that was the point you got into theater? Yeah, after that I joined theatre just after Detective Byomkesh Bakshi because uh, मतलब ये नहीं पता था कि मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ बट ये जानने के लिए कि मैं कर सकता हूँ या नहीं तो दैट्स व्हाई आई जॉइंड थिएटर एंड दैट टू नॉन कमर्शियल थिएटर ग्रुप जो किसी भी पब्लिक से पैसे नहीं लेते थे जो ऑडियंस होती थी हम लोग Hmm. उनसे पैसे नहीं लेते थे एंड Hmm. कभी 100 सीट्स होती थी जिसमें से कभी कभी फुल हाउसफुल होता था कभी कभी 4-10 लोग बैठे होते थे और वही हमारे परिवार वाले बैठे होते थे कभी कभी तो ऐसा होता था तो Okay. बट द बेस्ट थिंग वाज दैट एवरी एक्टर इन दैट थिएटर ग्रुप यूज्ड टू गेट दैट स्टेज जहाँ पे वो परफॉर्म कर सके एंड चाहे वो अच्छा करे या बुरा करे वो मैटर नहीं करता है बट उसको एक स्टेज मिलता है कि वो एटलीस्ट ही शुड कम आउट वट एवर ही हैज इनसाइड and there I got to know okay I think I should start giving auditions and I think I should stick with this theater group for a long time because it is So gradually for helping it's been how many years that you're into theater now? like I have अभी तो 1-1.5 साल से मैं होल्ड पे हूँ बट 2014 में ही ज्वाइन कर लिया था मैंने और Hmm. 5 साल हो गए वैसे 4 साढ़े 4 साल 5 साल. 4.5 5 साल है Saade char, तो 5 साल. उन So उस what थिएटर is the ग्रुप में biggest मैंने 3 साल learning? करा सॉरी Okay. So what is the biggest learning you had from theater? थिएटर लाइक आप चाहे थिएटर करो चाहे कोई भी एक्टिविटी जो भी आप सीखना चाहते हो चाहे थिएटर से सीखना चाहते हो या कुछ भी सीखना चाहते हो एक चीज बहुत जरूरी है सबके लिए आई थिंक नॉट जस्ट फॉर एन आर्टिस्ट टू प्रैक्टिस डेली आप कुछ भी कर लो कुछ भी कोई ऑप्शन ही नहीं है अगर आपने 2-3 दिन ब्रेक लिया जैसे अगर आप वर्कआउट करते हो या योगा करते हो एंड आप अगर 2 दिन 3 दिन नहीं करते हो तो आपको अंदर से वो वैसी आवाज आती है कि शिट यार कुछ मिसिंग है हाँ, कुछ missing है, right? दिस इज सेम विद थिएटर ऑल्सो बट थिएटर के साथ क्या होता है कि आप कुछ कुछ जो आपके बेसिक्स होते हैं वो काफी स्ट्रांग हो जाते हैं एज एन एक्टर Hmm. और ये कुछ मतलब मुझे बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि इफ यू डू थिएटर देन यूल बी अ वेरी लाउड एक्टर बट आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ होता है आई थिंक जितने भी थ्योरीज एंड ऑल जितनी भी इवेंट हुई है रिलेटेड टू एक्टिंग इट हैज ऑलवेज कम थ्रू थिएटर बिकॉज वहाँ पे लोग ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं एंड दे आर नॉट greedy most of them are not greedy most of them are not greedy of getting commercial because they are spending a lot of time and मुंबई में तो ऐसे बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स हैं जहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट एक्टर्स होते हैं जो ज्वाइन करते हैं इनिशियल स्टेज पे एंड दे हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम बिहाइंड द स्टेज सो वहाँ पे यू जस्ट Hmm. गेट comfortable with that atmosphere and then you dive into that process where you start exploring yourself in front like on the stage so that's what I feel कि वो धीरे धीरे सिंकिंग करता है और वो जब सिंक करता है अंदर से तो वो रहता है आपके जहन में अच्छे Okay. So what were your first project in commercial industry, like commercial entertainment industry? What was your first project? my first project was advertisement like बहुत ही funny एक incident है when I was in Delhi after doing this film called Chitli तो उसके बाद दिल्ली में ही एक कोई प्रोजेक्ट था जिसमें मैंने ऑडिशन दिया था फर्स्ट टाइम
और and I got selected also. So and I got to know that this Max Hospital is sponsoring this serial, and वो दिल्ली की Okay. बात. तो वहाँ पे मैंने शूट किया एज एन एक्टर एंड मैंने उनको ये भी कहा कि आई हैव वर्क बिहाइंड द कैमरा आल्सो इफ यू हैव अ जॉब एज एन एडी देन आई डोंट माइंड डूइंग इट. तो उन्होंने कहा ठीक है हमें भी एडी चाहिए हम, बिकॉज वो पायलट शूट करने वाले थे. पायलट शूट में क्या होता है Okay. कि एक दो एपिसोड करते हैं एंड देन दे पिच टू ऑल दीज चैनल्स एंड फिर आपका वो कंफर्म हो जाता है, फिर आपका वो शो चलने लगता है. सो दिस वाज द प्रोसेस. Hmm. पायलट शूट के लिए आई गॉट Okay. सिलेक्टेड एंड आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, आई एम गॉट दिस अपॉर्चुनिटी. पायलट शूट किया जिसमें एज एन एक्टर भी थोड़ा सा छोटा रोल किया एंड आई वाज वर्किंग एज एन एडी आल्सो इन दैट. तो आफ्टर दिस जब प्रोजेक्ट खत्म हुआ था 3 दिन 4 दिन का शूट था एंड जो भी प्रोड्यूसर था ही टोल्ड मी कि आकाश यू हैव डन अ ग्रेट जॉब एंड हम लोग 1 2 या 3 महीने बाद we'll go to Mumbai and we are pitching to these channels and हमारा शूट ये चालू होगा, तुम्हारा इनकम इतना होगा. एंड इनकम जिस हिसाब से उन्होंने बताया था मेरे तो अंदर से सोचा कि मैं लाइफ में सेट हूँ. Okay. एंड वो मंथली इनकम उन्होंने बताया था. आई वाज लाइक कि शिट दिस इज ग्रेट, आई विल बी गोइंग टू मुंबई और मैं तो लाइफ सेट है, एटलीस्ट मैं काम के साथ पहले ही लैंड करूंगा मुंबई. बट ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरे ख्याल से. वो उन्होंने पिच किया या नहीं किया उसके आगे कुछ कहानी पता नहीं चली और मैंने अपने स्कूल में ढिंडोरा पीट दिया था अपनी टीचर्स को कि मैम मुझे अपॉर्चुनिटी ये सब मिल रहा है. And after that I was like कि oh shit this is the process, now you have to understand this is the filmmaking process. क्योंकि सिर्फ एक चीज नहीं होती, बहुत सारी चीजें होती हैं. पहले आप ऑडिशन देते हो और ऑडिशन से पहले एक राइटर होता है जो एक आइडिया पॉप अप करता है, वो डिस्कस करता है, देन ही राइट्स. उसके साथ 2 3 राइटर्स हैं, Hmm. देन विद सो मेनी पीपल, फिर वो प्रोडक्शन में जाते हैं. इतनी सारी चीजें होती है. फिर वो पिच करते हैं चैनल्स को या डिजिटल चैनल्स को या कोई प्रोडक्शन हाउस को जो स्क्रिप्ट या अगर फिल्म का हो तो वैसा हो. सो देन आई रियलाइज कि बहुत सारी चीजें होती हैं एंड यू हैव टू बी पेशेंट. तो मैं इनिशियल स्टेज पे ही पेशेंट हो गया था. सो दैट वाज माय Okay. फर्स्ट प्रोजेक्ट. बट जो जो ऑन एयर प्रोजेक्ट गया था फर्स्ट, इट वाज लावा मोबाइल्स का एड मुंबई में Okay. 2014. Hmm. और जब मैं सेलेक्ट हुआ था मैंने अपने किसी दोस्त को नहीं बताया था, सिर्फ अपनी मम्मी को बताया था क्योंकि आई वाज स्केर्ड कि फिर से ऐसा ना हो जाए, पता चला मैं ढिंढोरा पीट दूं और पता चला वो चीज Okay. आए ना. तो वो लकली आई और जैसे आई मैंने अपने दोस्तों को दिखाया जो भी मुंबई में मेरे फ्लैटमेट्स थे. ये देखा लाइक अबे तुझे मिल गया था. मुझे लगा कि ऐसे So how difficult was it for you to, survive in Bombay as like you coming from a middle class family, living behind everything and then, getting back to Bombay and struggling there for acting and work. So how did you manage it financially, emotionally, mentally? I think, like I personally, that's why I worked 360 in this industry because मुझे मैंने इसीलिए कॉलेज में ही शॉर्ट फिल्म सुनाना चालू कर दी थी एंड मुझे फिल्म बैकग्राउंड के इर्द गिर्द रहना था और मुझे ये पता था Okay. कि मुझे यही करना है और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है. आई हैव टू बी इनटू दिस क्रिएटिव फील्ड एंड आई हैव टू Hmm. अर्न फ्रॉम दिस ओनली. और मैंने यही पढ़ाई करी है तो अब उसके अलावा तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ और मुझे करना भी नहीं है. नहीं तो somewhere I'll be emotionally weak if I'll be not doing that. So that's Okay, how okay. mostly I was strong because I was totally into it and चाहे एक्टिंग ना हो तो चलो मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा, बिहाइंड द कैमरा काम कर लूंगा, फोटोग्राफी कर लूंगा या कुछ भी कर लूंगा. तो दैट्स व्हाट आई वाज डूइंग इन इनिशियल years in Mumbai and that's how I was surviving Hmm. and I was also doing theater. So मेरा बहुत ही टाइट शेड्यूल होता था पूरे मुंबई में हमेशा से ही. 2 3 4 साल तो बहुत ही टाइट रहता था. मैं प्रोजेक्ट कभी बिहाइंड द कैमरा भी काम कर रहा हूँ, फिर फ्री होता हूँ तो थिएटर भी जाता हूँ, वहाँ पे प्रैक्टिस भी करता था और ऑडिशन भी देता था. तो बहुत सारी चीजें में इन्वॉल्व रहता था एंड दैट्स हाउ आई Oh, मैनेज. that is okay. So I think Okay, okay. everyone who is not who doesn't have a good financial stability in Mumbai and he has to somewhere has to find a way. बहुत सारे ऐसे
एक्टर्स हैं जो कास्टिंग डायरेक्टर्स के साथ भी काम करते हैं, एंड Hmm. मैं उसमें नहीं जाना चाहता था. मुझे पता था कि आई कैन डू समथिंग एल्स ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम कास्टिंग, एंड सो दैट्स व्हाई आई वाज Hmm. लाइक कि somehow manage myself because you can't only rely on acting पूरे टाइम पे. तो साथ साथ मैं ये भी करा था, वो भी करा था, और बहुत सारे ऐसे हैं एक्टर्स जो मुंबई में हैं जो कुछ ना कुछ करते रहते हैं साइड बाय साइड. Okay. Okay. Nice. So, you worked into Filter Copy, right? That's a YouTube channel. You Yeah, did I've some done a sketches in couple of that, sketches. like. Yeah, that's the YouTube Hmm. channel. So, how was your experience in that? It was amazing because when I did my first sketch with them, I didn't know that this will go this huge, and I was, uh, I was, I was just doing my job as an actor, and जो response जो मिला audience के through, and now people everyone जिनसे भी मिलता हूँ और वो यही कहते हैं कि तुम्हारा वो वाला sketch, तुम्हारा वो वाला sketch, तुम्हारा वो वाला sketch. So I understood कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कैसे ग्रो करे हैं इन कुछ सालों में, और लोगों को कितना Hmm. मजा आता है कंटेंट देखने में, एंड इट्स फनी ऑल्सो, ह्यूमरस होता है और काफी लोग रिलेट कर पाते हैं. एंड देन आई रियलाइज दिस इज Hmm. समथिंग आई एम enjoying ऑल्सो, क्योंकि यू वर लर्निंग, एंड अभी भी आप सीख ही रहे हो, और वहां पे जो करके आते हो वो कुछ आप उसी वक्त क्रिएट कर रहे हो, और So, आप what do you think? Like, this digital platforms give actors like a good platform to grow. Is it? Do you think personally that the I digital what I'll platform say is is more कि important these days than a movie or anything big project? Because digital platform is something which gives you visibility very quick. So, do you um, think that it helps you to grow in a I good way? personally think that every project, every whether it's an ad, whether it's a sketch, whether it's a movie, whether it's a series, आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे करो, चाहे वो एक रीजनल फिल्म भी हो, वो हर एक अपॉर्चुनिटी आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी के लिए हेल्प करती है, एंड Help कहीं it's a हाँ, stepping. इट्स ऑलवेज अ Okay. स्टेप. और ऐसा नहीं है कि आप यही करो या वही करो. इट डिपेंड्स ऑन यू व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी यू लाइक टू से, एंड कौन Hmm. से मीडियम के थ्रू. आई डोंट हैव एनी पर्टिकुलर चॉइसेस कि मुझे यही करना है या वही करना है. हाँ, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, ये वो हो भी सकता करना है. Okay. है. हाँ. Okay. So that's why Uh, I've always been open, and as an actor I think everyone should be very open. हाँ, मैं मतलब टीवी से थोड़ा सा मैंने कभी टीवी कभी किया नहीं है, बिकॉज मुझे लगता है कि मैं एक ही प्रोजेक्ट में काफी लंबे टाइम तक करूंगा तो आई मे बी शायद मैं कुछ क्योंकि आई हैव दैट काइंड ऑफ अ थिंग कि मैं किसी के साथ एक दो महीने के साथ देन आई वांट टू डू समथिंग एल्स, सो okay. दैट हेल्प्स मी. बट मैं ये भी चाहता हूँ कहीं ना कहीं कि आई गेट दिस अपॉर्चुनिटी इन टीवी ऑल्सो, क्योंकि आप किसी प्रोजेक्ट में लंबे समय के लिए आप एक ही सीरियल कर रहे हो और वो भी लंबे समय के लिए, तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन क्रिएट हो जाता है एज एन एक्टर. Hmm. वैसे मैं बहुत डिसिप्लिन हूँ, ऐसा नहीं है कि अगर मुझे 5 बजे कॉल टाइम आते तो मैं 5 मिनट पहले आने की हमेशा कोशिश करता हूँ, और हमेशा ऐसा हुआ है. और Okay. बट हाँ, आप कोई लंबे समय के लिए कुछ करोगे तो मे बी आई यू लर्न समथिंग फॉर श्योर. तो Okay. ट्राई करना चाहूंगा. So, you worked into Kamyab also, right, with Sanjay Mishra sir. So, how was that हाँ. experience, working with such a, senior actor? How was It it? was Were you nervous? Because you had few shots with him. So, like, were you nervous while working with him, or how was the experience? एब्सोल्युटली अमेजिंग बिकॉज आप किसी सीनियर एक्टर के साथ काम कर रहे हो, और सबसे अच्छी बात नर्वसनेस तो बिल्कुल नहीं थी, बिकॉज जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया था मेरे लिए एज एन एक्टर वो बहुत ही ब्यूटीफुल था, और संजय सर ने भी बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल कर दिया था, थैंक्स टू हिम एंड थैंक्स टू हार्दिक मेहता जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं. और उन्होंने बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया था. और सबसे अच्छी बात ऐसा नहीं था कि मैं डायरेक्ट सेट पे आया था, मैं पहले संजय सर से मिला, हमने रीडिंग करी उनके घर पे,
और उन्होंने ये बोला कि तुम्हें स्क्रिप्ट ले जाने की जरूरत नहीं है, हमने रीडिंग कर ली बहुत है, और अगर तुम स्क्रिप्ट करोगे Hmm. तो रटे हुए लाइंस बोलोगे, हमें ऐसा कुछ नहीं दिखाना है। और वो चीज काम आई, और जब हम लोग परफॉर्म कर रहे थे कैमरा के सामने, और वो चीज लगी मुझे भी कि हाँ ये तो बहुत ही नेचुरली निकल गई। एंड Hmm. आफ्टर रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑडियंस आई रियलाइज दिस थिंग एक्चुअली वर्क्स। तो मुझे लगा कि दिस इज समथिंग विच आई बी लर्निंग। एक पहला दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म जो मैंने शूट करी थी, और बाद में रिलीज हुई। Okay. ट्वेंटी Hmm. ट्वेंटी रिलीज हुई थी, मतलब इसी साल हुई है। और तो पहली फिल्म में ऐसा लेसन बेस्ट है, और वो भी ऐसी फिल्म जो एक कैरेक्टर आर्टिस्ट की जर्नी बता रहा है। And you are Hmm. also starting your career as an actor and doing such film। आप कहीं ना कहीं आप अंदर से खुश होते हो कि हाँ आपने ऐसी फिल्म में एक आप छोटा सा Very. हिस्सा, ऑब्वियसली। So do you think that actually those kind of things happen which was shown in Kamya? Have Yes, you come obviously. I across? think not just Kamyab, not just in film background. I think it happens everywhere. हम कहीं ना कहीं जो मतलब कुछ भी कर रहे हो आप, बड़ा छोटा प्रोजेक्ट, उसमें कोई ना कोई हर क्लास के डिफरेंट क्लास के लोग होते ही। और कहीं ना कहीं सबको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। कुछ लोग बस होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो इस चीज के अवेयर भी नहीं है। एंड दिस हैपेंस एवरीवेयर, आई Okay. फील, नॉट जस्ट इन फिल्म बैकग्राउंड, एवरीवेयर। Okay. Okay. So then how did you got into Uri? I'm really excited to know that how did you got into that? सो आई गेव द ऑडिशन, एंड जो कास्टिंग डायरेक्टर है उनका नाम विक्की सदान है, उनके असिस्टेंट ने मुझे कॉल किया था Hmm. टेस्ट करने के लिए। उन्होंने कहा था कि अपनी पिक्चर्स भेजो, एंड आई सेंट फ्यू पिक्चर्स, देन ही वाज लाइक यू हैव टू कम फॉर द ऑडिशन। स्क्रिप्ट भेजी थी एंड आई वेंट फॉर द ऑडिशन, एंड ठीक ठाक हुआ था ऑडिशन, मतलब बहुत ही गजब का ऑडिशन नहीं देकर आया था कि मैं भाई ऐसा हुआ कि फाड़ दिया मैंने कुछ। बट Okay. वहां पे ऑडिशन देकर आया, एंड उसके बाद उन्होंने कहा कि वी आर कंसिडरिंग, एंड एक बार डायरेक्टर से मीटिंग हो सकती है तुम्हारी। तो मैंने कहा ठीक है। तो Hmm. मैं उन्होंने मेरे ख्याल से एक हफ्ते बाद ही, मैं उस ऑडिशन के एक हफ्ते बाद आई वेंट टू डायरेक्टर्स हाउस, और उन्हीं के घर पे जाके मैंने एक बार फिर से परफॉर्म किया था। और तब तक मैं सेलेक्ट नहीं हुआ था, और Okay. काफी अच्छा था। उन्होंने थोड़ा कैरेक्टर समझाया, और उसके बाद व्हेन आई केम बैक होम, एंड उनका कॉल आया एक दो घंटे बाद, मेरे ख्याल से 2-3 घंटे बाद ही आया था। कहता है कि आकाश यू गॉट सिलेक्टेड, ओके। और बहुत ही नॉर्मली बोला Oh. था, एंड मैं ये तो इतनी बड़ी बात है, तो नॉर्मली बोल सकते हैं। अच्छा ये लोग तो कास्टिंग करते हैं, इनका तो काम ही है रोज। एंड देन उसके जस्ट 15 मिनट बाद आई कॉल्ड माई मॉम, एंड Hmm. तब मुझे लगा कि हाँ आई हैव अचीव्ड एटलीस्ट कुछ तो। क्योंकि फिल्म आने से ज्यादा जब आप सेलेक्ट होते हो ना एज एन एक्टर, वो बड़ी अचीवमेंट है। वो True. And प्रोसेस तो लगा now, रहेगा how do कि you feel when that movie had worked so well and you have played an important role in that? So, how do you feel about it now? Because, of course, when you were shooting, you didn't know that this movie is going to be a blockbuster. But now, when you know that you are a part of such a huge project, which happened, which was loved by like everybody throughout the world. So, how do you feel about that? And it's moreover, you have played a major role in that. Your whole part was really important because if we, like that Garud wala part was really important for the whole surgical strike. So how do you feel about this whole thing that you got into such a nice project and it was loved by everybody. Your part was loved by everybody. I obviously it's amazing feeling because आपको एक वैलिडेशन मिल गया इनिशियल स्टेज पे, आपके करियर पे, कि पीपल लव योर वर्क, एंड ये फिल्म हर जगह काफी, मतलब सबने, मतलब आई व्हेन आई गो टू सम प्लेस एंड व्हेन आई टॉक अबाउट इट, लोग मुझे ऐसे तो पहचान नहीं पाते। देन आई एक्सप्लेन देम कि ओ वो गरुड़ वाला कैरेक्टर, ओ हाँ 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 तुम उस पे तो Exactly. ये चश्मा था, हाँ हाँ हाँ, तो वहां पे अच्छी फीलिंग आती है, बहुत ही अच्छा लगता है। एंड और सबसे अच्छी, उससे ज्यादा अच्छी बात है कि यू आर द पार्ट ऑफ सच फिल्म जिसमें
जिसकी स्टोरी अच्छी होने के बावजूद उनकी टीम भी बहुत अच्छी थी एंड एवरीवन वाज वर्किंग सो हार्ड फॉर इट And एंड moreover, you got to share the screen with the most senior actor of that movie एग्जैक्टली also. एग्जैक्टली Like in एग्जैक्टली both the movies, you have shared the screen with the senior most actors. So how do you feel about it? Like Mr. Paresh Rawal, Sanjay sir, these actors are मतलब, remarkable actors in our industry. So मतलब, it must be a great feeling to share it's the a screen with blessing. them. I feel that it's a blessing and उनके साथ काम करके यू हैव और ऑब्वियसली हम लोग सिर्फ फिल्म्स देखते थे उनकी एंड यू आर परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ देम, वो तो एक अलग ही फीलिंग होती है With एंड them, not even in front of them, with them. Yeah. हाँ मतलब वही विद देम एंड वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आपके परफॉर्मेंस में भी सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि आप जो सीनियर हो तो मुझे, और मैं हमेशा से कोशिश यही करता हूँ कि व्हेन सम सीनियर एक्टर इज परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ मी देन आई ऑलवेज ट्राई टू बी क्वाइट मोस्ट ऑफ द टाइम, ताकि वो बोले और मैं उनके अकॉर्डिंग रिएक्ट करूं, बट ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने हमेशा इतना कंफर्टेबल कर दिया था कि मैं जब बोलता था वो सुनते थे तो Okay. ये काफी अच्छा लगा और आई थिंक ये एक लेसन था एज एन एक्टर और आपको भी मतलब काफी काम करना है, तो ये लेसन मैं भी सीखूंगा कि मैं जितने भी एक्टर्स होंगे मेरे आसपास तो उनको फ्रीडम दूंगा बोलने की, ताकि मुझे भी Hmm. फ्रीडम मिले बोलने की. Great. So, there was no shot of you and Vicky Kaushal in the movie, but did you ever got a देयर chance वाज to meet him? या ऑब्वियसली हमने वर्कशॉप पे भी हम लोग मिले थे और शूट पे तो हम लोग वो कभी कभी उनके सीन्स होते थे तो मैं आज जाता था कभी सेट पे, तो कभी मतलब सेम डे होता था, उनके कुछ सीन पहले होते थे तो मेरे बाद में होते थे, तो मैं जाता था देखता था और वो खुद ही आके बातचीत करते थे एंड बहुत अच्छा लगता था, ऐसा लगता था कि कोई बड़ा भाई है मेरा, और बहुत ही ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि ओ ही इज विकी कौशल, बट जैसा लोग कहते हैं उनके बारे में वैसा ही था, बिल्कुल सच है कि ही इज वेरी हम्बल, ही इज वेरी डाउन टू अर्थ एंड वहाँ पे, और वर्कशॉप के अलावा एक एक सीन था जो लास्ट में डिनर वाला जो होता है, इफ यू रिमेम्बर दैट फिल्म, तो उसमें भी Yes. हम साथ में ही बैठे होते थे, तो वहां पे हमने वही दैट वाज द ओनली मोमेंट जब वी शेयर्ड अ स्क्रीन. Okay. So, like this whole, I'm sure this movie's experience would be the most remarkable one because this was a blockbuster. You had a great part to play in that, and then the team was so amazing. So, Yes, what was the most memorable experience of yours from that movie? No, uh, it can be of any part, the after party or the success party or during the shoot or before the pre-production preparations or whatever. It could be anything. So, what was the best experience of yours or the most memorable thing you had experienced during while this movie was going on? बेस्ट एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा जब परेश सर के साथ मतलब जब परफॉर्म कर रहे थे तो एक सीन कट होने के बाद उन्होंने गुड बोला था तो Okay. मैं पल के लिए मैं घबरा गया, मैंने कहा, ये क्या बोल दिया सर एंड आई फेल्ट सो गुड यार, मतलब आप उनके मुंह से सुन रहे हो गुड, उससे ज्यादा क्या चाहिए, एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट फीलिंग थ्रू आउट दैट फिल्म, पूरे प्रोसेस में सबसे बेस्ट वही मोमेंट था. एंड Okay. आफ्टर काफी अच्छा था जब हम लोग सक्सेस पार्टी जब हुई थी इसकी, तो परेश सर जब मिले मुझसे वो खुद ही वो उठ के ऐसे मिलने आए, ग्रीट किया उन्होंने बहुत अच्छे से और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा ओके दैट्स व्हाई ही इज परेश रावल. Yes, that's I'm sure that must be a very good feeling. So, while we were conversing before this interview, you told me that you are a traveler also and you love photography also. So, any specific places you have been to and you just, fell in love with it, or any dream place you would want to go? आई थिंक ड्रीम प्लेस तो मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं है, बट आई वांट टू ऑब्वियसली ट्रैवल ऑलमोस्ट एवरीवेयर, बट अगर एक चीज को ड्रीम प्लेस बना दूं तो बाकी प्लेसेस की वैल्यू कम हो जाएगी
But yeah, Okay. before going out, like outside India, I want to फर्स्ट एक्सप्लोर इंडिया अच्छे से, क्योंकि बहुत सारी जगह है यहाँ पे ही इंडिया में जो मैंने अभी तक देखी नहीं है। एंड मैं Hmm. ट्रैवल कहाँ कर चुका हूँ, ज्यादा नहीं किया वैसे, बट उत्तराखंड काफी घूम चुका हूँ। और मुझे ट्रैकिंग बहुत पसंद है। और मेरा अभी तक का वैसे ड्रीम डेस्टिनेशन तो नहीं पता, बट यू कैन से कि मैं साइकिल से ट्रैवल करता था। Oh, okay. Nice. आई One लव of डूइंग one of साइकिलिंग। the viewers is saying that you have a Insta photographic account as well. यस 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 Yeah, यस। great. मैं मतलब So, मैं tell me one स्कूल thing. टाइम में, सॉरी, Sorry, I can't hear you. मैं स्कूल टाइम से ही मतलब फोटोज खींचने का मुझे बहुत शौक था। एंड कॉलेज में व्हेन आई गॉट द कैमरा, मैं बहुत सारी फोटोज खींचता था उस वक्त। तो Okay. बुक पे तो डालता था मैं बहुत, बट इंस्टाग्राम पे, क्योंकि अब मोस्टली पीपल आर ऑन इंस्टाग्राम, सो आई थॉट इट्स बेटर टू गेट अ डिफरेंट अकाउंट एज अ फोटोग्राफर, just to show what you have Yeah. Yeah, you on have it. written in your bio also, मेरी खींची हुई फोटो देखोगे, something like that. I know. Okay, so मैं अलग पेज while पे we were डालूंगा तुम्हें। conversating before, like before this interview, you told me one thing that you said this that industry is very big, but actually you don't find it that big. What did you mean by that? बिकॉज हमें मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, पहली बात तो आप पूरे टाइम टीवी पे या स्क्रीन में सबको देख ही रहे हो, तो जो एक्टर्स होते हैं, एंड व्हेन यू आर वर्किंग Hmm. ऑन सेट, मतलब ऐसा हुआ है कि आप सेम लोगों के साथ कभी कभी काम करते हो, और फिर से लगता है कि यार अरे हमने उस वाली फिल्म में किया था। तो ऐसे काफी स्पॉट दादा लोग हैं, और काफी गाफर लोग हैं जो लाइटमैन्स होते हैं, और केटरिंग भी कभी कभी सेम होती है, और खाने से ही पता चल जाता है टेस्ट करके कि ये सेम केटरिंग है क्या, वही। तो कहते हैं हाँ 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 हाँ, मुझे अच्छा. पता है, आप आए थे हमारे एड में, याद है आपको, मैंने कहा हाँ हाँ। तो ऐसा बहुत बार हुआ है। Okay. तो वहां से मुझे लगता है कि आई थिंक इंडस्ट्रीज है स्मॉल, हमें लगता है कि काफी बड़ी है। एंड सब कुछ ना कहीं जुड़े रहते हैं। और अभी तो इंस्टाग्राम है, तो कहीं ना कहीं जितने भी एक्टर्स हैं वो तो जुड़े ही रहते हैं, बट ऐसे जो बिहाइंड द कैमरा लोग काम कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं, क्योंकि दे आर वर्किंग अ लॉट, मुझे ऐसा लगता है जो पीछे बिहाइंड द कैमरा Yes. काम करते हैं वो बहुत मेहनत Yes. करते They work हैं। harder. Exactly. जो डेली वेजर्स है उनका तो रोज का काम होता है, तो सबसे ज्यादा उनसे ही मुलाकात होती है मेरी। क्योंकि वो कहीं Hmm. मैंने, यू वोंट बिलीव, मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक मेकअप आर्टिस्ट है, जो जो मतलब शूट पे आया हुआ था, और उसकी आंखें थोड़ी सी लाल थी। मैंने कहा क्या हो गया भाई, कोई नशे वशे करके आया क्या? तो कहता है नहीं नहीं, मैं रात को शूट कर रहा था एक और। मैंने कहा भाई तू सो जाए कर। कहता है नहीं नहीं है, आदत है मुझे ऐसे। मैंने कहा ऐसा मत किया कर, थोड़ा रेस्ट भी ले लिया कर। कहता है अभी इस शूट के बाद मैं खत्म होगा 2 घंटे, यहीं पे बगल में एक दोस्त का घर है, वहां पे रेस्ट लेगा 1 घंटा, फिर वहां से एक और शूट है। मैंने कहा शिट। Okay. और मुझे पता चला ये लोग कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं। एंड मुझे तो अगर एक दिन शूट हो गया, और मुझे तो ये रेस्ट चाहिए ही चाहिए, एटलीस्ट 4-5 घंटे का Okay. तो रेस्ट चाहिए ही। एक बार मेरे साथ हुआ था कि मैं एक सेट से दूसरे सेट गया था, बट मैंने पहले ही उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे कहीं जगह दे देना 2-3 घंटे सोने के लिए। Okay. So, any other upcoming projects you have अभी तक तो कुछ भी नहीं। after this quarantine, after the lockdown is over? आई होप Anything you कुछ have lined up to shoot? आई होप कुछ Okay. काम नहीं। बट या देयर आर आई थिंक फ्यू शॉर्ट फिल्म्स व्हिच विल बी कमिंग। अभी मुझे भी नहीं पता है उसका कोई अपडेट, क्योंकि शूट कर लिया था। Hmm. एंड अभी आई थिंक बिकॉज ऑफ लॉकडाउन देयर इज नो अपडेट राइट नाउ। वंस आई थिंक सब सॉर्ट हो जाए, आई होप जल्दी सॉर्ट हो जाए, तो मुझे भी पता चल जाएगा, सो दैट आई कैन आल्सो इन्फॉर्म एवरीवन। Okay. Say hi to Jindal. He's been asking you to, हेलो say hi to जिंदल। him. हाय जिंदल। And no, no, he does not have any attitude. Please, we are in the middle of an सॉरी interview, यार। so we would like you to.
just wait and he would answer everything Sorry, at the end Shubham. of the Sorry, session. Subhan. Sorry, Subhan. I'm so sorry. Shubham Jindal, his name is Jindal. Okay, if you guys have any questions, please put down so that he can answer for you. मैं एक And मिनट then देख there लेता are हूँ few सबके people कमेंट who, yes, there are few people who जाके. wanted to say hi, so हेलो, please reply to them. हेलो सबत, शुभम. There is one हेलो गैंग Shekhar. ऑफ गुड. हेलो अयान. हेलो Strix 275. Hey Anyahi. Anyahi, thank you so much. Uh, Temesgen Jebre. Oh, sorry, इतनी gibberish languages. Thank you so much. Twins and Mommy Tales. Hey, hello Vaishali. Hello Shekhar. Thank you so much Shekhar. Thank you Arish Sawant. Hello Kara 4774. Hello that Karunas 123. Hello Praful. Okay, थोड़ा सा मैंने एक्चुअली ट्राइपॉड में लगाया है ना मैं बहुत वियर्ड तरीके से स्क्रॉल कर रहा Okay, हूँ. so then Hey there Lavu. is Lavu who wants to say hi to you. Hi Lavu. Hello. Then Hello there is Sandeep Vikhyat who wants to Panigar. say hi. Hey बंदा गिरीश. Hello. कमाल कलाकार. Thank you बंद गिरीश भाई. Thank you so much. I think हो गया क्या? Hello विख्यात. Yes, I think some Tarushi is saying you played Damsharaz with her yesterday. Oh yeah, I played Damsrat. Amazing. How? I'm good Tarushi. How are you? Nice. So I think we are done here. हाँ Thank you हाँ so much, जिंदल Akash, भाई for ने मुझे कह coming. दिया sweet. Thank you. Yeah, he Thank you, just said that Harry. you're sweet. Superb. Finally, he thinks you don't have attitude because he said hi. But it's great. I feel it's good also, it's bad also. आप डायरेक्ट बोल सकते हो कमेंट पे और कभी कभी आप कुछ ज्यादा ही बोल देते हो बट ठीक है इट्स ओके कुछ नहीं कर सकते. He just, anyways, it was really good having you, Akash. Thank you Hope so to much. have this live session again with you sometime in future. For sure, for sure, And, for sure. wish you all the best. And thank you Thank you. so much for coming and giving your precious time to me Thank and you to so the much. viewers here. Thank Thank you you. so much. Bye bye. 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 Okay, guys, so we had Akash with us and he just left. Thank you so much all for, watching this whole session. And yes, thank you so much. Stay tuned to my stories to know who will be the next guest on my interview session. And I'll see you soon. Bye bye. Take care.